السلام علیکم ایوری ون، دس از سونیا لودھی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورلڈ ان ویو اونلی آن پی ٹی وی نیوز. سب سے پہلے آپ سبھی کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ورلڈ ان ویو کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کے پازیٹیو فیڈ بیکس ہمیں مل رہے ہیں. ایز آلویز میں آپ کو سب سے پہلے سمری بیان کرنا چاہوں گی کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو کیا کیا دکھانے والے ہیں. چین بھارت کشیدگی، امریکا میں صدارتی انتخابات، ووہان میں سیاحوں کی واپسی، پاکستان اور شام کے ساتھ روس کے تعلقات، کینیا کی جھیل پر فلامنگوز کی واپسی، امریکہ نمائندہ خصوصی کی طالبان سے ملاقات، سعودی بادشاہ کا امریکی صدر کو ٹیلی فون، ڈیوڈ بلین کی غباروں کے ساتھ پرواز، کرونا عالمی منظرنامہ اور اس کے علاوہ بہت کچھ. پاکستان کی وزیر خارجہ نے ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی اور اس کے علاوہ پاکستان فوج کے اعلیٰ عہدیدار کی اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے پر بات چیت کی گئی. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ترقی، معاشی نشوونما، غربت کے خاتمے اور عوام کے سماجی معیار کی بہتری کے اہداف کے حصول کے لیے تنازعات کا پرامن حل ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ غیر یقینی اور شفاف مسابقت کے ماحول میں ٹکراؤ کی بجائے تعاون کو عالمی سیاست کا رہنما اصول ہونا چاہیے. وزیر خارجہ نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے 20 سال مکمل ہونے پر ہم علاقائی تعاون کو فروغ دے کر درپیش بحران کو ایک نئے امکان میں بدل سکتے ہیں تاکہ اس تنظیم کی حقیقی صلاحیت کھل کر سامنے آئے. وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے اور متنازع خطوں کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے ہر قسم کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی شدید مذمت اور پرزور مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے. مشترکہ ذمہ داری کے طور پر پاکستان نے امن و مفاہمتی عمل کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اندر اور باہر سے خرابی پیدا کرنے والوں کے کردار سے خبردار رہا جائے. وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ انتہا پسندی اور دیگر اقوام اور اسلام سے نفرت و بیزاری کے رویوں کی آج کی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں. کورونا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کورونا سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی صلاحیت کے حوالے سے اپنے تجربات سے دنیا کو مستفید کرنے کے لیے تیار ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے بعد اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ایس سی او وزرائے خارجہ نے اتفاق رائے سے غربت کے خاتمے کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کے اسلام آباد میں قیام کے لیے پاکستان کی تجویز کو منظور کر لیا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ تمام اراکین نے کورونا وبائی خطرات سے نمٹنے کے لیے متفقہ لاہ عمل تشکیل دینے پر زور دیا ہے. وزیر خارجہ کی ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے موقع پر کرغزستان کے وزیر خارجہ چنگیز ایڈربیکوف کے ساتھ ملاقات ہوئی. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، اہم علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ نے پاکستان کی ایس سی او کی رکنیت کے لیے کرغزستان کے متحرک کردار کو سراہتے ہوئے کرغزستان کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا. وزرائے خارجہ کے اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ بھی ملاقات کی. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستان اور چین خطے میں قیام امن اور استحکام کے حوالے سے بااعتماد اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. انہوں نے کہا علاقائی روابط کا فروغ، امن و استحکام کا قیام اور عوامی روابط میں اضافہ بی آر آئی اور ایس سی او کے یکساں اہداف ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان ون چائنا پالیسی کا حامی ہے اور چین کی خود مختاری اور قومی مفاد سے متعلق امور پر چین کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. اس طرح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے ماسکو میں روسی افواج کے چیف آف جنرل سٹاف ویلدی گراسیموف سے ملاقات کی. ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی یکسوئی پر تبادلہ خیال کیا گیا. روسی جنرل نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج کی قربانیوں کی بھی تعریف کی. آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رضا دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کے عنوان پر ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے روس کے 2 روزہ دورے پر گئے تھے. کانفرنس کا انعقاد شنگھائی تعاون تنظیم کے فورم کے تحت ہوا ہے.
जनरल नदीम रजा मास्को में इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स की इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मिलिट्री गेम्स में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज का दस्ता गुज़श्ता 3 साल से शिरकत कर रहा है। सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन किया है कि सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल और मुनसिफाना हल चाहता है। अमरीकी सदर का कहना है कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के माबैन परवाज़ों के लिए सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का खैर मकदम करते हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा है कि सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना और मुस्तकिल हल चाहता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के मुजव्वज़ा अरब अमन मुआहिदे के लिए इस मसले का हल नुक्ता आगाज है। दोनों रहनुमाओं के माबैन टेलीफोन पर बातचीत गुज़श्ता महीने मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान मुआहिदे में सालिसी के तनाजुर में हुई है। इस मुआहिदे के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने वाला तीसरा अरब मुल्क बन गया है। इससे पहले मिस्र और उर्दन के इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर थे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि अमन के लिए अमेरिका की कोशिशों की कदर करते हैं और मसला फ़लस्तीन का हल सऊदी अरब के मुजव्वज़ा अरब अमन मुआहिदा 2002 की बुनियाद पर होता देखना चाहते हैं। इस मुजव्वज़ा मुआहिदे के मुताबिक अरब ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की पेशकश की थी, जिसके लिए फ़लस्तीनी रियासत की आज़ाद हैसियत को तस्लीम करने और 1967 की अरब इसराइल जंग में मकबूजा इलाकों को खाली करने की शराइत रखी गई थी। सऊदी अरब ने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। ताहम इस महीने सऊदी अरब की हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के माबैन परवाज़ों को अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके मुशीर जैरेड किशनर ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा है कि अगले कुछ महीनों में एक और इस्लामी मुल्क इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर लाने का ऐलान करेगा, लेकिन अभी तक किसी अरब मुल्क ने मुत्तहिदा अरब इमारात के फैसले की तकलीद करने का ऐलान नहीं किया। गुज़श्ता महीने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और जैरेड किशनर ने अपनी मुलाकात में फ़लस्तीन और इसराइल को आपस में मुज़ाकरात करने की ज़रूरत पर जोर दिया है, जबकि फ़लस्तीनियों की तरफ से इमारात इसराइल मुआहिदे को बड़ी मुखालफत का सामना है। अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रखी है और एक दूसरे को मात देने के लिए एक दूसरे पर तनकीद और तबसरे जारी हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। 7 सितंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से दूसरी टर्म के लिए सदारती उम्मीदवार हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद सदारती उम्मीदवार साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन एक बेवकूफ़ आदमी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चीन के साथ कारोबार ख़त्म करने से कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रंप का कहना है कि हम चीन के साथ कारोबार में अरबों डॉलर्स का नुकसान कर रहे हैं। अगर हम कारोबार ख़त्म कर दें तो ये नुकसान नहीं होगा। इस तरह डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद उम्मीदवार जो बाइडन ने मिशिगन में 10 सितंबर को अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी लोगों को धोखा दिया है और वबा के हवाले से लोगों को गलतफहमी का शिकार करता रहा है। बाइडन का कहना था ट्रंप वबा को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। उन्होंने कहा इस वक्त अमेरिका के 1,90,000 से ज़्यादा लोग लुक्मा अजल बन चुके हैं। और बॉब वुडवर्ड ने लिखा है कि गुज़िश्ता फरवरी में एक इंटरव्यू के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया कि उन्हें इस बीमारी के मोहलिक होने का अंदाज़ा था, लेकिन वो खामोश रहे क्योंकि वो लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। बाइडन का कहना है कि कई महीनों तक ट्रंप ने लोगों को बेखबर रखा है और जब वबा ने अमरीकी लोगों पर हमला किया तो ट्रंप उसे कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। बाइडन के इस इल्ज़ाम को गुज़िश्ता बुध के रोज़ व्हाइट हाउस ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों को धोखा नहीं दिया, जबकि बाइडन ने कहा है ट्रंप ने अमरीकी अवाम से किए कोई वादे पूरे नहीं किए। उसने मुल्क की मईशत को तबाह किया है और अमरीका को बदहाल किया है। आबादी के हवाले से दुनिया के दो बड़े ममालिक चीन और भारत लद्दाख के महाज पर एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं और दिन ब दिन ये कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। आइए इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। लद्दाख में चीन भारत कशीदगी में हर दिन गुजरने के साथ इजाफा हो रहा है। चीन की वजारत खारजा का कहना है कि भारतीय फौजी दस्तों ने मुश्तरका सरहद पर फायरिंग की है और गैर कानूनी तौर पर सरहद को उबूर कर लिया है। चीनी वजारत खारजा की तर्जमान
زاؤ لیجان کا کہنا ہے کہ بھارت سرحدی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بیجنگ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بھارت سے کہا ہے کہ سرحد پر کشیدگی بڑھانے کے بجائے اپنے فوجی دستوں کو ہدایت کریں کہ وہ سرحدی نظم و ضبط کی پابندی کریں۔ آبادی کے حوالے سے دنیا کے دونوں بڑے ممالک گزشتہ کچھ مہینوں سے لداخ کے محاذ پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور دونوں ملک ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین اور بھارت کے مابین سرحد پر آتشی اسلحے کو استعمال نہ کرنے کا معاہدہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جون میں یہاں دونوں ملکوں کے مابین ہوئی جھڑپ میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ رواں ہفتے کی حالیہ جھڑپ میں دونوں ممالک ایک دوسرے کو کشیدگی بڑھانے کا الزام دے رہے ہیں۔ چین کا موقف یہ ہے کہ بھارتی فوجی دستوں نے پنگوئنگ سو جھیل کے جنوب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے اور گزشتہ ایک ہفتے سے وہاں دونوں ممالک کے مابین سرحد پر حالات کشیدہ ہیں۔ اس حوالے سے چین کی مغربی کمانڈ کے نمائندہ زونگ کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے سرحد پر گشت کرنے والے چینی فوجیوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے بعد چینی فوجی دستوں کو مجبوراً رد عمل کرنا پڑا اور صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اقدامات اٹھانے پڑے۔ چینی وزارت خارجہ نے بھی کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کرنے میں پہل کی، جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ چینی فوج نے لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے اور سرحد کی موجودہ پوزیشن کو تبدیل کرنے کی کوشش اور اشتعال انگیزی کی ہے، جبکہ بھارت نے کبھی بھی سرحد عبوری نہیں کی اور نہ سرحدی علاقے میں کبھی بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ بھارت کی جانب سے چین پر 5 شہریوں کو اغوا کرنے کے الزام کے بعد چین نے نئی دہلی کو واضح کر دیا ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا حصہ نہیں، یہ علاقہ چین کا جنوبی تبت ریجن ہے۔ 5 ستمبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین اور بھارت کے مابین سرحدی جھڑپوں کے حوالے سے تنازع کو حل کرنے کے لیے مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین سرحد پر حالات کشیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم دونوں ممالک سے رابطے میں ہیں اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ ٹرمپ ماضی میں بھی یہ پیشکش کر چکے ہیں، جبکہ اس پیشکش کے جواب میں چین کا کہنا ہے کہ اس میں تیسرے ملک کی ثالثی کی ضرورت نہیں ہے اور بھارت بھی ظاہراً اس امریکی پیشکش کے حوالے سے مطمئن ہے۔ مشہور زمانہ امریکی شعلہ باز ڈیوڈ بلین نے 25,000 فٹ کی بلندی تک ہیلیم کے غباروں کے ساتھ پرواز کر کے دنیا کو ایک مرتبہ پھر حیران و پریشان کر دیا ہے۔ بلین نے اپنے تازہ ترین کرتب امریکی ریاست ایریزونا کی فضاؤں میں سر انجام دیے۔ آئیے یہ انٹرسٹنگ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ مشہور ہونے کے لیے جان جوکھوں میں ڈالنا، انوکھے کام کرنا اور نت نئی جہتوں سے انسانی صلاحیتوں کا امتحان لینا امریکی شعلہ باز ڈیوڈ بلین کا مشغلہ ہے۔ 47 سالہ بلین نے اپنے حالیہ کرتب میں ہیلیم کے غباروں کے ذریعے 25,000 فٹ بلندی تک پرواز کرنے کا مظاہرہ کر کے اپنی پوری دنیا میں مداحوں سے داد سمیٹی ہے۔ غباروں کے ذریعے پرواز کی ہونے والی کوریج کو 7,70,000 لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس کرتب میں بلین نے امریکی ریاست ایریزونا کا انتخاب کیا ہے اور جمبو سائز کے غباروں کے ساتھ انوکھی پرواز کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوران پرواز اپنے زمین پر موجود معاونین اور عملے کے لوگوں سے ریڈیو کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے بلین کا کہنا تھا کہ یہ حیران کن تجربہ ہے، میں خود کو ہوا میں تیرتا ہوا محسوس کر سکتا ہوں۔ یوٹیوب کا کہنا ہے کہ اس کرتب کی براہ راست کوریج نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور اس تقریب کو یوٹیوب کی لائیو کوریج میں سب سے زیادہ ناظرین نے براہ راست دیکھا ہے۔ بلین نے اوپر جاتے وقت اپنی رفتار کو تیز کرنے کے لیے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے اوزان کو گرایا اور 24,900 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر آکسیجن ماسک لگا لیا۔ یاد رہے، دنیا کی کمرشل پروازیں اتنا بلندی پر پرواز کرتی ہیں۔ ہیلیم بھرے غباروں کے ساتھ پرواز کے مظاہرے کو کل 30 منٹ لگے ہیں۔ بلین نے غباروں سے خود کو آزاد کرواتے ہی زمین کی طرف سفر شروع کیا ہے اور زمین کو چھونے سے صرف 30 سیکنڈ پہلے پیراشوٹ کھول کر ایریزونا کے صحرا میں بحفاظت اترنے کا مظاہرہ مکمل کیا ہے۔
Sounds good, but make sure you pick a nice spot. You know, if you have to turn and pick somewhere farther away that's better, do that. Are there power lines next to this road? There is a skinny set right alongside the road. David, I'm on the backup radio. We can't hear you. Just land a nice big flare into that open ravine. Flare, 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 flare. Yeah! डेविड बिलेन ने आलमी तौर पर बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं और आलमी तौर पर नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। इनमें से 2 दिन तक बर्फ में रहने के मुजाहरे से लेकर 35 घंटे तक न्यूयॉर्क की एक इमारत के सतून पर खड़े होने तक के करतब शामिल हैं। सन 2012 के बाद डेविड का ये पहला करतब है जो बराह रास्त दिखाया गया है। बिलेन का कहना है कि इस करतब को करने के लिए उन्हें 2 साल तक तैयारी करनी पड़ती है और इस मकसद के लिए उन्होंने पायलट का बाकायदा लाइसेंस हासिल कर रखा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने दोहा में तालिबान के मुज़ाकरात कार से मुलाकात की है। तवक्को की जा रही है कि अफ़गान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम इस हफ्ते दोहा जाएगी ताकि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की इब्तिदा हो सके। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने दोहा में तालिबान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह से मुलाकात की है ताकि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए राह हमवार की जा सके। ये मुज़ाकरात वाशिंगटन और तालिबान के माबैन होने वाले मुआहदे की रूह से हो रहे हैं और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात इस मुआहदे की रूह से 5000 तालिबान कैदियों की रिहाई के बाद शुरू होने का इम्कान है और अभी तक दर्जन भर तालिबान कैदियों की रिहाई होना भी बाकी है। अफगान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम और हुकूमत की तरफ से तालिबान कैदियों की रिहाई का इशारा मिलने पर तवक्को की जा रही है कि अगले हफ्ते दोहा बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात के लिए रवाना होगी। दोहा में तालिबान के सियासी सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुज़ाकराती टीम के नए सरबराह अब्दुल हकीम हकानी से ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कतरी नायब वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की है। तालिबान के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि इस मुलाकात में कैदियों की रिहाई और फौरी तौर पर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की इब्तिदा करने के हवाले से बातचीत की गई है। गुज़िश्ता 2 साल से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अमरीकियों से मुज़ाकरात की सरबराही करते रहे हैं और उन्होंने वाशिंगटन के साथ होने वाले मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिससे बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात और अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों के इनखला के हवाले से राह हमवार हुई है। गुज़श्ता हफ्ते तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखवंज़ादा ने हक्कानी की सरबराही में नई 22 रुकनी मुज़ाकराती टीम का ऐलान भी कर दिया है। 3 तालिबान कमांडर्स ने आलमी खबर रसां इदारे से बातचीत करते हुए कहा कि हालिया दिनों में तालिबान के मुजाहिदों ने मुल्ला बरादर के मुज़ाकरात पर हावी होने पर एतराज़ात किए थे। ताहम तालिबान के ओहदेदारों का कहना था कि मुज़ाकराती टीम को तब्दील करने का मकसद टीम को इख्तियार दिया गया है कि वो मौके पर फौरी फैसला कर सकें। हक्कानी तालिबान के मुजव्विज़ा चीफ जस्टिस थे और वो तालिबान की आला काउंसिल के सरबराह भी हैं। तालिबान के एक ओहदेदार का कहना है कि अखवंज़ादा सबसे ज्यादा हक्कानी पर एतमाद करते हैं और हक्कानी के मुज़ाकरात में मौजूदगी का मतलब है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर खुद मौजूद हैं। एक सफारतकार ने खबर रसां इदारे को अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मुल्ला बरादर भी तालिबान में असर रखते हैं लेकिन हक्कानी सीनियर हैं। इससे मालूम होता है कि ये टीम फैसले करने में ज्यादा बाइख्तियार होगी। रूस और शाम की अमरीकी पाबंदियों की परवाह किए बगैर एक दूसरे से ताउन को फरोग दे रहे हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। रूस और शाम अमरीकी पाबंदियों के बावजूद एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को फरोग देने के लिए लगभग 40 मंसूबों पर काम कर रहे हैं जिसमें जंग के शिकार मुल्क में तवानाई की सहूलतों को बहाल करना भी शामिल है। रवां हफ्ते रूस के नायब वजीर आज़म यूरी बोरिसोव ने सहाफ़ियों को बताया है कि इन मंसूबों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की तामीर और तेल निकालने के मंसूबे भी शामिल हैं, जबकि शाम के सदर बशर उल असद का कहना है कि वो शाम और रूस के माबैन कारोबार को वुसअत देना चाहते हैं ताकि अमेरिका की तरफ से आयद पाबंदियों का मुकाबला किया जा सके। रूस ने अमेरिका की तरफ से शाम पर पाबंदियों को तनकीद का निशाना बनाया है जो गुज़श्ता जून में लगाई गई थीं। इस हवाले से वाशिंगटन का कहना है कि ये पाबंदियां सजा के तौर पर हैं ताकि बशर उल असद को माली खसारा हो और उसे मजबूर किया जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से होने वाले मुज़ाकरात की तरफ वापस लौट आए और मुज़ाकरात के ज़रिए इस तसादुम को ख़त्म करे। शाम के वज़ीर ख़ारजा वलीदुल मुअल्लिम ने
रवां हफ्ते मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल बेहतर होने की भरपूर तवक्को है। 2015 से रूस की तरफ से फौजी इमदाद की वजह से दमिश्क ने बागियों से अपने इलाके वापस लिए हैं और दोनों ममालिक तिजारत, तवानाई और पावर प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे से ताल्लुकात फरोग देने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। कोरोना की जद में आने वाला पहला शहर वुहान फिर से अपने मामूलात जिंदगी की तरफ लौट आया है। मजदूर अपनी सनतों को, बच्चे अपने स्कूलों को और सयाह वुहान के दिलकश मकामात की सैर को निकल आए हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वबा का मरकज समझे जाने वाला शहर वुहान फिर से मकामी सयाहों का दिलकश मकाम बन गया है। वुहान की सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने के आगाज में सियाहती मकामात की एंट्री फीस खत्म कर दी थी ताकि सियाहत की सनत को दोबारा से बहाल किया जा सके। चीन के सूबे फ्यूजियान से आए एक सयाह टैंग यूकिंग ने वुहान के शहर येलो क्रेन टावर की सैर करते हुए कहा कि मैं गुज़िश्ता साल भी 2 दिन के लिए यहाँ सियाहत के घर से आया था, लेकिन अब यहाँ एंट्री फीस भी नहीं है और मेरा ख्याल है कि शहर को घूमने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। एक सयाह का कहना है कि मुझे इंटरनेट से पता चला कि हमारे सूबे की हुकूमत ने वुहान शहर के सियाहती मकामात के दाखिले को फ्री कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ सैर करने आई हूँ। मुझे हुकूमत की इस पॉलिसी से मौका मिल गया है कि मैं वुहान की सैर करूँ। वुहान शहर की गलियों और बाजारों में काम करने वाले छोटे ताजरों ने हुकूमत से अपील की है कि शहर में सियाहत को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जाएं ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा सयाह सैर करने के लिए आ सकें और हमारे कारोबार की रौनकें दोबारा बहाल हो सकें। बच्चों के खिलौने फरोख्त करने वाले एक ताजर का कहना है, सयाहों की तादाद बढ़ाने के लिए हमें हुकूमत की मदद दरकार है। अगर सियाहत बढ़ेगी तो कारोबार बेहतर होगा और दूसरे शहरों से ज्यादा सयाह हमारे शहर में आएंगे। वुहान शहर का शुमार चीन के बड़े शहरों में होता है। जनवरी में यहाँ कोरोना वायरस की वजह से 2 महीने के लिए लॉकडाउन किया गया था। यहाँ कोरोना की वजह से होने वाली अमवात का 80% इसी शहर में हुई थी और अप्रैल से लॉकडाउन खत्म होती ही जिंदगी मामूल पर आ गई थी। 18 मई सन 2020 से लेकर अब तक इस शहर में किसी नए कोरोना केस की इत्तला नहीं आई। झील और परिंदे एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम समझे जाते हैं। झील की गहराई बढ़ जाए तो परिंदे अपने मस्कन को छोड़ देने पर मजबूर हो जाते हैं। कीनिया की नाकुरू झील पर 8 साल के बाद फ्लैमिंगोस वापस आ गए हैं। आइए ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कीनिया की नकोरो झील में पानी की मिकदार में इजाफा होने की वजह से लाल सर ये झील छोड़ गए थे, जबकि इन परिंदों की यहाँ झील में मौजूदगी सयाहों के लिए दिलकशी का सामान था। लाल सर की इस झील से हिजरत ने सयाहों को मायूस किया और यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद में नुमायां कमी हो गई। लेकिन अब परिंदों की वापसी के बाद सयाह भी यहाँ वापस लौट आएंगे, क्योंकि इस इलाके का मुकम्मल इन्हिसार सियाहत से होने वाली आमदन पर है। परिंदों की यहाँ वापसी को नेक शगुन समझा जा रहा है कि परिंदों की वापसी से झील की खूबसूरती में इजाफा होगा, जिसकी वजह से यहाँ सियाहत को फरोग मिलेगा और रोजगार के मौके बढ़ जाएंगे। आजकल लालसर परिंदों ने झील पर डेरे डाल रखे हैं और उनकी झुंड खुराक की तलाश में झील के फेरोजी पानी पर उड़ाने भरते नजर आते हैं। सियाहती पार्क की वार्डन ने आलमी खबर रसां इदारे से बातचीत करते हुए कहा है कि यहाँ तकरीबन 2.5 लाख सयाह इस झील की सैर करने के लिए आते थे। अब मुझे उम्मीद है कि परिंदों की वापसी से यहाँ सयाहों की तादाद में भी इजाफा होगा। कीड़े, पतंगे, लार्वा और कई लालसर की महबूब ग़िज़ा है और गहरे पानी की वजह से परिंदे अपनी मतलूबा खुराक पानी से तलाश नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वह ऐसे मस्कन छोड़ जाते हैं जहां खुराक की फराहमी न हो। वार्डन का कहना है कि यहाँ पानी की मिकदार बढ़ने से लालसर परिंदे बोगोरिया और बरिंगो झीलों की तरफ चले गए थे। वहाँ पानी की मिकदार कम थी, लेकिन हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से अब वहाँ पानी की मिकदार बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से लालसर परिंदे नकोरो झील को वापस लौट आए हैं। कोरोना की वजह से कीनिया में सियाहत को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन नकोरो झील की तरफ परिंदों की वापसी से यहाँ रौनकें लौट आई हैं।
दुनिया में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों का इदराक रखते हुए उबर ने अपनी टैक्सी सर्विसेज को अगले कुछ सालों में बिजली की मदद से चलने वाली गाड़ियों में मुंतकिल करने का ऐलान किया है। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। उबर टेक्नोलॉजीज ने 2040 तक अपनी टैक्सी सर्विस की तमाम गाड़ियों को बिजली से चलने वाले इंजन पर मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से कंपनी ने 2025 तक अपने ड्राइवर्स और दूसरे शराकतदारों को सहूलियात देने के लिए $800 मिलियन खर्च करने के अज़्म का इजहार किया है। उबर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दारा खुर्बशाही ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने और माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा, क्योंकि इस बहरान से निमटने के लिए पहले भी बहुत देर हो चुकी है और इसके असरात पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। उबर ने गुज़श्ता फरवरी में कहा था कि दुनिया भर में इनके 50 लाख ड्राइवर्स हैं और इन्होंने जनरल मोटर्स, निसान, रेनॉल्ट और मित्सुबिशी के साथ शराकतदारी कर ली है। उबर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये एक तवील सफ़र है और आम तौर पर किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहला कदम मुश्किल होता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना और ड्राइवर्स को इस टेक्नोलॉजी से मानूस करवाने में कुछ मुश्किलात हैं। उबर का कहना है कि 2030 तक अमेरिका, कनाडा और यूरोप में इनकी गाड़ियों से कार्बन का अखराज 0 हो जाएगा और हमारा जनरल मोटर्स, रेनॉल्ट से मुआहिदा इन ममालिक में गाड़ियों को कार्बन के अखराज से फ्री करने पर तवज्जो देना है। अमेरिका में उबर के हरीफ लिफ्ट इंक ने 2030 तक अपनी तमाम गाड़ियों को बिजली के इंजन पर मुंतकिल करने का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने अपने ड्राइवर्स के लिए किसी भी मुराती पैकेज का ऐलान नहीं किया। उबर का कहना है कि वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत कम होनी चाहिए, जो गैसोलीन से चलने वाली गाड़ियों से कहीं ज्यादा है। उबर के इस मंसूबे से ऑटो इंडस्ट्री के कारोबार में बेहद इजाफा होगा। यूरोप में माहौल के हवाले से सख्त कवानीन ने गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को मजबूर किया है कि वो माहौल दोस्त गाड़ियां बनाएं। अब उबर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वाले ड्राइवर्स को $1 ज्यादा दिया जाएगा। गुज़श्ता साल उबर ने 7 अरब लोगों को सफरी सहूलियात दी हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 28 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है और 20 मिलियन के करीब वो लोग हैं जो कि सेहतयाब हो चुके हैं और 9 लाख के करीब वो लोग हैं जो कि इसका शिकार होकर लुक़्मा अजल बन गए। आइए आपको करंट सिचुएशन दिखाते हैं कोरोना की। कोरोना की आलमी वबा ने दुनिया भर में 28 मिलियन से ज्यादा लोगों को मुतासिर किया है, जिनमें से 20 मिलियन से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि इस आलमी वबा के सबब 9 लाख से ज्यादा लोग इसका शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। दुनिया भर में 62,000 के लगभग मरीजों की हालत तशवीशनाक है और आलमी तौर पर यौमिया अमवात की तादाद 8,000 से तजावुज कर चुकी है। इस तरह दुनिया में यौमिया नए मरीजों की तादाद 3 लाख हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से तालीमी इदारे दोबारा बंद कर दिए गए हैं। नए तालीमी साल को शुरू हुए 3 दिन ही गुजरे हैं कि वायरस की दोबारा हमले से फ्रांस की हुकूमत ने 20 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। भारत इस वक्त कोरोना की ऐन जद में है और कुछ दिनों से यहाँ नए मरीजों की तादाद में बड़ी हद तक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता जुमेरात को भारत में नए मरीजों की तादाद 95,735 थी और इसी रोज वहां 1,172 अमवात हुए हैं। इस वक्त दुनिया में मरीजों की तादाद और अमवात के हवाले से अमेरिका सरे फहरिस्त है। अमेरिका में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 66 लाख के लगभग है और अमवात की तादाद 2 लाख के करीब है। यहाँ 40 लाख लोग सेहतमंद हो चुके हैं और एक्टिव केसेस की तादाद 25 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 15,000 के लगभग मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में 9 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। रवां हफ्ते भारत ने कोरोना केसेस में ब्राजील और रूस को पीछे छोड़ दिया है और यहां अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मरीज हैं। भारत में मरीजों की तादाद लगभग 47 लाख हो चुकी है और 78,000 के लगभग अमवात हो चुकी हैं। भारत में 35 लाख सेहतमंद हो चुके हैं और यहाँ 10 लाख के लगभग एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जिनमें से 9,000 की हालत तशवीशनाक है।
यहाँ 5.5 करोड़ लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राजील 43 लाख कोरोना मरीजों की तादाद के साथ तीसरे नंबर पर है। यहाँ होने वाली अमवात की तादाद लगभग 1,30,000 है। यहाँ 35 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और एक्टिव केसेस की तादाद 6 लाख से ज्यादा है, जबकि 8,500 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ब्राजील में 1.5 करोड़ लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। अमवात की तादाद के हवाले से ब्राजील पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। रूस मरीजों की तादाद के हवाले से चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 10.5 लाख के करीब है, जिनमें से 8.5 लाख मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। रूस में 2300 लोगों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 18,500 के करीब लोग लोकमाए अजल बन चुके हैं। रूस में 4 करोड़ लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। पीरू मरीजों की तादाद के हवाले से 5वें नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 7 लाख से तजावुज कर गई है, जिनमें से 30,000 से ज्यादा मरीज मौत के मुंह में जा चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 1,35,000 से ज्यादा है, जिनमें से 1,500 के करीब मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। यहाँ 35 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। थाईलैंड के एक चिड़ियाघर में 55 साला दरियाई घोड़े की सालगिरह मनाई गई और उसे इस सालगिरह की खुशी में डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स को एक केक की शक्ल में दिया गया। आइए ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। थाईलैंड के एक चिड़ियाघर में 55 साला मायमाली नामी दरियाई घोड़ी की सालगिरह मनाई गई। सालगिरह की तकरीब में शरीक बच्चों और दूसरे लोगों ने जब सालगिरह से मुताल्लिक गीत गाना शुरू किया तो दरियाई घोड़ी ने केक की शक्ल में मौजूद अनवाउ इकसाम के फलों को चपड़ चपड़ खाना शुरू कर दिया। मायमाली को 2 साल पहले बैंकॉक के चिड़ियाघर से यहां मशरकी थाईलैंड के चिड़ियाघर में लाया गया। दरियाई घोड़ी की औसत उम्र जो 40 से 50 साल है वो पूरी कर चुकी थी। चिड़ियाघर के डायरेक्टर अतापूरन का कहना है कि अब मायमाली दादी बन चुकी है। हम इसकी सेहत, खुराक और रिहाइश का बहुत ख्याल रखते हैं। माली ने बहुत से बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें से 21 जनूब मशरकी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक के चिड़ियाघरों में मौजूद हैं। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन हम इसकी मुकम्मल हिफाजत कर रहे हैं ताकि माली को तवील उम्र दरियाई घोड़ी का एजाज मिल जाए। इस वक्त तक फिलिपीन में एक दरियाई घोड़े ने 65 साल तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड कायम किया है, जो 2017 में मर चुका है। इस तरह अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के एक पार्क में लूसीफर नामी दरियाई घोड़े की उम्र 60 साल है। हाथी के बाद दरियाई घोड़ा जमीन पर रहने वाला भारी भरकम जानवर है, जिसका वजन 1500 किलोग्राम से 3200 किलोग्राम तक होता है। दरियाई घोड़ा दिन में गर्मी से बचने के लिए पानी के अंदर वक्त गुजारता है और रात के वक्त फल और घास चरने के लिए पानी से बाहर आता है। आलमी जंगली हयात फंड के आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 1,15,000 से लेकर 1,30,000 दरियाई घोड़े मौजूद हैं। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमें अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा और अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है worldview@ptv.com.pk। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।